تو کہانی شروع ہوتی ہے 1967 سے اور پہلے سین میں ہم افریقہ کا جنگل دیکھتے ہیں جہاں پر ایک وائرس پھیلا ہوتا ہے جس کا نام ہے موٹوبا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ڈاکٹرز اور سائنٹسٹ یہاں پر آتے ہیں اور متاثر ہوئے پیشنٹس کا بلڈ سیمپل لیتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اس کے بعد وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ اور کچھ ہی دیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ امریکن آرمی کے جنرلز ایک حکم جاری کرتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ اس گاؤں پر بم گرا کر تباہ کر دیا جائے تاکہ وائرس کو آگے پھیلنے سے روک سکیں۔ اب مووی ہمیں 28 سال کے بعد آگے لے جاتی اور یہاں پر ہم اپنے ون آف دا مین کریکٹر ڈسٹن ہافون کو دیکھتے ہیں جو اس مووی میں کرنل سیم کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ سیم اپنی وائف کے ساتھ رہتا ہے جس کا نام ڈاکٹر رابی ہے۔ کچھ ہی دیر میں سیم کو جنرل کی طرف سے ایک کال آتی ہے جس میں وہ لیول 4 کی ڈیٹیلز بتاتے ہیں۔ اب بیسیکلی لیول 4 ہے کیا؟ لیول 4 بیسیکلی ایک ایسی ڈیزیز ہے جس میں لائف کے لیے ہائی رسک ہوتا ہے۔ اب اس کی مزید ڈیٹیل جاننے کے لیے سیم کرنل سے ملنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہاں پہ کرنل سیم کی ملاقات ڈفرینٹ آفیسر سے ہوتی ہے جس میں جنرل بلی بھی شامل ہوتے ہیں۔ میجر سالٹ کا یہ فرسٹ مشن ہے کرنل سیم کے ساتھ، اور جب یہ دونوں افریقہ کے جنگلوں میں پہنچتے ہیں جہاں پہ وائرس بریک آؤٹ ہوا ہوتا ہے تو وہاں دیکھ کے یہ بہت پریشان ہوتے ہیں کیونکہ سچویشن بہت خراب ہو چکی ہے۔ یہاں پر بہت سے لوگ مر رہے ہوتے ہیں، خون کی الٹیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کے میجر سالٹ بہت پریشان ہو جاتا ہے اور اپنا ہیلمٹ اتار دیتا ہے اور رونے لگتا ہے۔ اور یہیں پہ ایک رینڈم آدمی ان سے ملتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ یہ وائرس ہوا سے نہیں پھیلتا، لیکن یہ اسے انسنا کر دیتے ہیں اور تمام سیمپلز کلیکٹ کر کر واپس برطانیہ اپنے ملک میں آ جاتے ہیں۔ جب کرنل سیم اس وائرس کا ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی ایک ہائی ٹیک لیبارٹری میں تو انہیں اور ان کی ٹیم کو پتا چلتا ہے کہ یہ موٹوبا وائرس ہے۔ یہ وہی وائرس ہے جو آج سے 28 سال پہلے بھی آیا تھا، اور یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہ وائرس بہت تیزی سے پھیلتا ہے، یعنی کہ 1 گھنٹے میں ڈبل ہو جایا کرتا ہے، دگنا ہو جاتا ہے، اور اگر احتیاطی تدابیر نہ کی جائیں تو 24 گھنٹے کے اندر انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اور اس وائرس کی ایک عجیب بات یہ بھی ہوتی ہے کہ نہ یہ ٹچ کرنے سے یعنی کہ نہ چھونے سے پھیلتا ہے اور نہ ہی ہوا سے پھیلا کرتا ہے۔ مزید انویسٹیگیشن کے بعد پتا چلتا ہے کہ یہ وائرس بندروں سے آیا ہے، اور یہ کوئی ایسا وائرس ہے جو مین میڈ ہے اور ان بندروں میں کسی نے یہ وائرس ڈالا گیا ہے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سائنٹسٹ ابھی بھی افریقہ سے بندر لے کے اپنے دوسرے ملکوں کی طرف جا رہے ہیں تاکہ ان پر میڈیکلی ایکسپیریمنٹس کیے جا سکیں۔ سیم اپنے سینئرز کو یہ ساری بات بتاتا ہے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیم اپنے سینئرز کو کہتا ہے کہ یہ بیماری بندروں سے آئی ہے اور جانوروں کی تمام امپورٹ ایکسپورٹ افریقہ سے فوری طور پر بند کی جائے کیونکہ یہ ہائی رسک کا معاملہ ہے۔ لیکن سیم کے سینئرز اس کی بات کو اگنور کر دیتے ہیں اور بہت زیادہ سیریس نہیں لیتے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص افریقہ کے جنگلوں سے سمگلنگ کر کے ایک بندر کو کیلیفورنیا لے کے آتا ہے، اور راستے میں جب بندر پانی پی رہا ہوتا ہے تو وہ پانی پیتے ہوئے اس شخص پر پانی کی کلی کر دیتا ہے، یعنی کہ وہ اپنے منہ سے پانی اس شخص پر پھینک دیتا ہے۔ یہ جو بندہ اس بندر کی سمگلنگ کر رہا ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے جیمز اسکاٹ۔ جیمز اس بندر کو بیچنے کے لیے ایک اینیمل شاپ پہ جاتا ہے۔ جب وہ بندہ اس بندر کو جانچ رہا ہوتا ہے تو بندر اپنے ہاتھ سے کھرید دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ زخمی ہو جاتا ہے اور اس کا تھوڑا سا خون بھی آ جاتا ہے۔ جب دکاندار غور کرتا ہے کہ یہ بندر نہیں بلکہ بندریا ہے، یعنی کہ فیمیل منکی ہے، تو وہ اسکاٹ کو واپس کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے میل بندر کی ضرورت ہے نہ کہ فیمیل کی۔ اسی بندر کے ہاتھ میں ایک بنانا بھی ہوتا ہے جو دوسرا بندر اسے چھین لیتا ہے اور وہ بھی کھا لیتا ہے۔ اور یہاں پہ ہمیں یہ چیز کلیئر ہو رہی ہوتی ہے کہ اس بندر سے وائرس اسکاٹ میں پھیلا اور اسی بندر کی وجہ سے اس دکاندار میں اور دوسرے بندر نے جس نے اس کا جھوٹا کھیلا کھایا۔ اب جب اس کا بندر نہیں بکا ہوتا تو اسکاٹ اسے قریبی جنگل میں چھوڑ دیتا ہے یہ سوچ کر کہ یہ آزاد ہو جائے اور مجھے واپس جانا ہے۔ اب اسکاٹ یہاں سے بوسٹن جانے کی تیاری کرتا ہے، اس کو اپنی فلائٹ پکڑنی ہوتی ہے۔ جب اسکاٹ پلین میں بیٹھا ہوتا ہے تو اس کی طبیعت کافی خراب ہوتی ہے، اور جب یہ بوسٹن پہنچ جاتا ہے تو یہ اپنی فرینڈ سے گلے ملتا ہے اور اسی وقت اسکاٹ بے ہوش ہو کے ایئرپورٹ پر ہی گر جاتا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں وہ دکاندار جو بندر خریدنا چاہ رہا تھا وہ بھی خون کی الٹی کرتا ہے اور بیمار ہو کے ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے۔ یہاں پر ایک لیب اسسٹنٹ اس دکاندار کے خون کا ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے، اور اسی ٹیسٹ کے درمیان غلطی سے وہ خون اس کے چہرے پر گر جاتا ہے اور وہ خود کو ہاسپٹلائز کروا لیتا ہے کیونکہ وہ سینس رکھتا ہے اور وہ اس امید میں رکھتا ہے کہ وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ اگلے سین میں ہم رابی کو دیکھتے ہیں جو کہ کرنل سیم کی وائف ہیں۔ یہ پیشے سے ڈاکٹر ہوتی ہے۔ جب رابی کو اسکاٹ کے بارے میں پتا چلتا ہے تو وہ فوراً اس سے ملنے کے لیے جاتی ہیں، لیکن جب تک وہ پہنچتی ہیں تو اسکاٹ کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے۔ اور رابی جب اسکاٹ کا پوسٹ مارٹم کرتی ہے تو اس کے جسم کے تمام اندرونی حصے آلموسٹ پانی سے بھر جاتے ہیں۔ اس نے ایسا کیس پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوتا، اور وہ یہ بات اپنے ہسبینڈ سیم سے بھی شیئر کرتی ہے۔ رابی یہ بھی بتاتی ہے اگر ایسا ہی کیس 24 گھنٹے میں دوبارہ آیا
तो हम हाई अलर्ट इशू कर देंगे। अब हम ये देखते हैं कि वही लेबोरेटरी वाला असिस्टेंट अपनी फ्रेंड के साथ सिनेमा में मूवी देखने के लिए जाता है। वहाँ पर इसकी तबीयत थोड़ी सी खराब होती है और वो जोर जोर से खांसने लगता है, जिसकी वजह से वायरस दूसरे लोगों तक पहुँचने लगता है। लेकिन इसे इस चीज का रियलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं होती, वो इसे एक नॉर्मल कफ समझ रहा होता है अब तक। और वो जब पानी पीने के लिए बाहर जाता है तो वहीं पे गिर जाता है और ये भी हॉस्पिटल में चला जाता है। कॉट और लेबोरेटरी वाला इंसान सिर्फ बीमार नहीं होते, बल्कि बहुत से लोग और भी बीमार होना शुरू हो जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये बीमारी फैल रही होती है और जिस हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा ऐसे केसेस मौजूद होते हैं वहाँ पर डॉक्टर रॉबी अपनी टीम को लेकर जाती है। दूसरी तरफ कर्नल सैम भी कैलिफोर्निया पहुंच जाते हैं, क्योंकि कैलिफोर्निया में सबसे ज्यादा बीमारी फैल रही होती है। अब हम ये भी देखते हैं कि ब्रिगेडियर जनरल बिली फोर्ड अपने एसोसिएट से बात कर रहे होते हैं। उनके एसोसिएट उन्हें कहता है कि कैलिफोर्निया को तबाह करना ही सोल्यूशन है ताकि ये वायरस दूसरे शहरों में ना फैले। लेकिन बिली फोर्ड कहता है कि नहीं, हम सबको बचाएंगे। और इसी कॉल के बाद कैलिफोर्निया को यूएस आर्मी चारों तरफ से घेर लेती है ताकि कोई शख्स ना बाहर जा सके ना बाहर से कैलिफोर्निया में दाखिल हो सके। जब सैम और रॉबी मिलते हैं तो इन्हें पता चलता है कि वायरस हवा से भी फैला करता है, क्योंकि ये वायरस उस शख्स को भी हुआ था जो वायरस वाले लोगों के करीब बिल्कुल भी नहीं था। पूरी टीम आपस में मिलती है और ये बात को फाइनलाइज करती है डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कि वायरस हवा से भी फैल सकता है और इसके अलावा ये एनिमल की वजह से आया है। शहर के हालात बहुत खराब होते हैं, बहुत अफरा तफरी की कंडीशन होती है। कुछ लोग भागने की भी कोशिश करते हैं लेकिन आर्मी इंटरफेयर करती है और किसी को बाहर नहीं निकलने देती और सबको एक कैंप लगाकर क्वारंटाइन कर देती है। और हम सब क्वारंटाइन का मतलब जानते ही हैं कि इन्फेक्टेड पेशेंट्स या जिन पर कुछ शक हो उनको बाकी लोगों से कुछ अलग रख, जिसकी वजह से वायरस और ना फैले और दूसरे शहर भी महफूज रहें। अब हम देखते हैं कि रॉबी इन्फेक्टेड स्टोर में जाती है। ये इन्फेक्टेड स्टोर वही है जहाँ पर कुछ इन्फेक्टेड एनिमल्स पाए जाते हैं। वो वहाँ से उस इन्फेक्टेड बंदर को लेके आती है और उसका चेकअप करती है। चेकअप के बाद ये सामने आता है कि उस बंदर के जिस्म के अंदर एंटीबॉडीज नहीं है जो वायरस को एक्सेप्ट कर सकें। इस वबा से बचने के लिए जनरल बिली फोर्ड E1101 सीरम का इंतखाब करते हैं, क्योंकि ये वही सीरम होता है जो आज से 28 साल पहले भी दिया गया था, क्योंकि ये बीमारी एक दफा पहले भी आ चुकी है। लेकिन पेशेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, शायद ये वायरस पहले से मजबूत होके आया है। ये सीरम बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा होता और पेशेंट्स की मौत होने लग जाती है। अब सैम वो सीरम लेके अपनी लेबोरेटरी में आता है ताकि उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर सके। वो अपने कोवर्कर मेजर सॉल्ट को वो सीरम देता है और कहता है कि इसकी डिटेल्स चेक करो और उस बंदर को भी दो। मेजर सॉल्ट वो सीरम उस इन्फेक्टेड बंदर को भी देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूएस आर्मी अपने लोगों को कहती है कि अगर आपको फ्लू, खांसी, जुकाम, नजला ऐसा कुछ भी है और अगर आपको शक है कि आप बीमार हो सकते हैं तो अपने घर के दरवाजे के बाहर एक सफेद कपड़ा लगाएं। इस सफेद कपड़े की वजह से यूएस आर्मी आती है और इन्फेक्टेड लोगों को अपने साथ ले जाती है ताकि उनका इलाज कर सके। मीडिया भी मुकम्मल तरीके से इन सब वाकयात की रिपोर्टिंग कर रहा होता है। दूसरी तरफ कर्नल सैम का साथी केसी लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है और एक्सपेरिमेंट के दौरान गलती से उसका सूट फट जाता है। ये एक प्रोटेक्टिव सूट है और फटने के बाद इसकी प्रोटेक्शन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो वायरस के बिल्कुल करीब होता है तो ये वायरस उसके अंदर भी आ जाता है, लेकिन वो इस वायरस का किसी से जिक्र नहीं करता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूएस प्रेसिडेंट एक मीटिंग कर रहे होते हैं और इसी मीटिंग के दरमियान वो जनरल जो बिली को कह रहा था कि हम कैलिफोर्निया को तबाह कर देते हैं वो यहाँ पे मौजूद होता है और वही जनरल प्रेसिडेंट से कैलिफोर्निया को तबाह करने की इजाजत ले लेता है। यानी कि अब हुकूमत की तरफ से ऑर्डर है कि कैलिफोर्निया को तबाह कर दिया जाए, क्योंकि अगर बम गिरा के इसे तबाह ना किया गया तो ये बीमारी दूसरे शहरों में भी फैल जाएगी। और ये कहीं से सेंस नहीं बनती कि कैलिफोर्निया के 27,000 लोगों को बचाने के लिए हम अमेरिका के लाखों लोगों को रिस्क में डाल दें। यहाँ पे कर्नल सैम और उसकी वाइफ रॉबी आपस में बात कर रहे होते हैं और उनकी नजर एकदम बंदर पर जाती है जो बिल्कुल एक्टिव होके खड़ा होता है और खेल कूद रहा होता है। वो उसे देख के बहुत खुश होते हैं और थोड़े से एक्सपेरिमेंट के बाद ये बात जानते हैं कि ये सीरम E1101 जिस बंदर को दिया था ये इस बीमारी की एंटीडोट है। ये वही सीरम था जो अफ्रीका के लोगों को ठीक करने के लिए बनाया गया था। लेकिन कैलिफोर्निया में ये वायरस बहुत लेवल तक फैल चुका है, इसलिए यहाँ पे ये बहुत लोगों पर असर नहीं कर रहा। ये एंटीडोट बिल्कुल काम नहीं आ रही, जिसकी वजह से लोगों की मौत वाक़या हो रही है। और यही लैब में कैसी, जिसका सूट फटा होता है, उसको दिल का दौरा पड़ता है। कैसी के तमाम साथी इसको लेकर नियरेस्ट हॉस्पिटल में चले जाते हैं और उसको वहाँ पे एडमिट कर देते हैं। यहाँ पर रॉबी जब कैसी को इंजेक्शन लगाने लगती है तो ये वायरस रॉबी में भी ट्रांसमिट हो जाता है, क्योंकि कैसी ने किसी को नहीं बताया होता कि वो भी इस वायरस से एक्सपोज्ड है। अब कैसी और रॉबी दोनों को वायरस हो चुका है। अगले सीन में सैम बिली फोर्ड से मिलने के लिए जाता है। बिली सैम को बताता है कि यूएस ने
کہ यूएस प्रेसिडेंट ने आज रात 8 बजे पूरे कैलिफोर्निया शहर को बॉम्ब से उड़ाने का फैसला कर लिया है। और ये भी बताता है कि यूएसए एक बायोलॉजिकल वेपन बना रहा था जो कि गलती से अफ्रीका के लोगों में फैल गया था। ये इसे एक अपनी पुरानी बात बता रहा होता है। दूसरी तरफ कैसी की भी डेथ हो जाती है। सैम को एक आइडिया आता है कि किसी अफ्रीका के बंदर को हासिल किया जाए और उसकी एंटीबॉडीज को इस सीरम के साथ मिलाकर एक एंटीडोट बनाई जाए जो कि इफेक्टिव होगी सबके लिए। और बहुत सी रिसर्च के बाद उसे पता चलता है कि एक बंदर अफ्रीका से स्मगल्ड होके आया था और वो नियरेस्ट जंगल में है। वो उस जंगल में जाता है और काफी मुश्किलों के बाद उस बंदर को ढूंढ लेता है। अब क्योंकि बंदर इनके पास आ गया है, सैम और उसकी टीम इस बंदर पर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कर रही होती है और उनका एक्सपेरिमेंट कामयाब होता है और एक एंटीडोट ये लोग बना देते। मैं एक बार दोबारा बताता चलूं, एंटीडोट बन गई, पहले से सीरम मौजूद था। सीरम अकेला काम नहीं करता था और एंटीडोट इनके पास अवेलेबल नहीं थी। अब एंटीडोट भी है और सीरम भी है, ये इन दोनों को मिक्स करते हैं और इस वायरस से बचने का रास्ता सामने आ जाता है। यानी अब ये मुकम्मल 100% इस वायरस से बचने की मेडिसिन है। अब ये मेडिसिन सैम अपनी वाइफ रॉबी को देता है क्योंकि रॉबी भी बीमार होती है और वो आहिस्ता आहिस्ता उसे मॉनिटर करते हैं कि रॉबी की तबीयत में बेहतरी आ रही है, जिसका मतलब ये है कि वो सक्सेसफुल रहे और इन्होंने इस वायरस से बचने के लिए मेडिसिन बना ली हुई है। हम देखते हैं कि 8 बजने के करीब होते हैं क्योंकि 8 बजे एक प्लेन ने आकर कैलिफोर्निया पर बॉम्ब से हमला करना था। और अब ये दोनों यानी कि सैम और उसका साथी सॉल्ट एक हेलीकॉप्टर में बैठते हैं कि जल्द से जल्द हम उस प्लेन को किसी तरह से रोक सकें। सैम का उस पायलट से राब्ता होता है जिसे वो मना करता है कि बम मत गिराओ, लेकिन वो उसकी नहीं सुनता। तो जनरल बिली फोर्ड इंटरफेयर करता है और वो उस पायलट को शहर पे बम गिराने से रोक लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बिली फोर्ड उस जनरल को भी पकड़वा देता है जिसने प्रेसिडेंट को गलत इन्फॉर्मेशन दी थी कि इस बीमारी के कोई सीरम नहीं है या कोई एंटीडोट नहीं है, जबकि रिसर्च वर्क हमारी बहुत कंप्लीट काम कर रही थी और इसका सीरम बन चुका है। और रूल के मुताबिक अगर ऐसा कुछ सिलसिला हो तो कभी भी शहर पर बम नहीं गिराया जा सकता, जो कि जनरल डोलंड ने अपने प्रेसिडेंट से छुपाया था। फॉल्स स्टेटमेंट की वजह से जनरल डोलंड को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस वायरस से बचने की मेडिसिन को कमर्शियली बनाया जाता है और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और जितने भी इन्फेक्टेड लोग हैं वो सब आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लग जाते हैं और सब लोगों में जिंदगी की उम्मीद दोबारा से आ जाती है। और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और आप हमारी मजीद वीडियोस भी देख सकते हैं।